Welcome everybody once again to our nuclear physics series. In previous lectures we are discussing about the binding energy as well as the binding energy curve. Now today we are going to see the semi-empirical mass formula. So in case of semi-empirical mass formula, the previous one expressions was very important related with the binding energy. In case of that binding energy, we are going to see the mass of the neutral atom, which nucleus contains the Z protons and A minus Z neutrons, any kinds of the nuclei. This is nothing but the M is the mass we consider in a previous expression, that is M is the mass, Z is nothing but the proton, and that is A minus Z is nothing but the neutrons which is present inside that the nucleids. So the expressions are rearranged of the binding energy is nothing but the like that M. It is consider any kinds of the elements. It is nothing but the A Z is equal to, first of all we see the term of the protons, that is Z number of mass of proton plus A minus Z number of mass of neutron and minus of, here I can write directly the binding energy. But one things we already see here, in case of that these expressions we see properly in a previous lectures is nothing but the plus of number of electrons, Z number of electrons, and after that I can write here the binding energy. So now such consider this when these are the number of protons as well as the number of electrons which is present in that atoms, and shall we consider it is nothing but the Z of MH. We are going to interested to see the hydrogen atoms, and here A minus Z of Mn minus B. Now students, here B is nothing but the binding energy. What is the B? B is nothing but the binding energy, and we may be regarded as being made up of the number of terms. These binding energy are made up of the number of terms which is represented some general characteristics of the nuclei, and such characteristics are firstly studied in 1935 by the scientist of Van Weizsäcker. The scientist is Van Weizsäcker. ये जो साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये बाइंडिंग एनर्जी की टर्म ऑब्टेन की, और उस टर्म को नाम दिया गया सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला. जब उन्होंने ये वाली टर्म एक्सप्लेन की, तब हमारे जो कैलकुलेशन थे, जो कि बहुत ज़्यादा पेचीदा कैलकुलेशन थे, वो पेचीदा कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ दिस बाइंडिंग एनर्जी सीरीज वो कम हो गए, वो इजी कैलकुलेट होने लगे. जब ये कैलकुलेट कर रहे थे, तब उन्होंने क्या किया था कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस है, ये उन्होंने जो शेल स्ट्रक्चर होता है हमारा, शेल स्ट्रक्चर्स को कंसिडर करके और न्यूक्लियन का इंटरेक्शन कंसिडर करके उन्होंने ये सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला इंप्लीमेंट किया है. अब सिंपल बात है कि कोई भी हम फार्मूला जब एक्सप्लेन करते हैं या ऑब्वियसली कोई हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसी फार्मूले के अंदर एडिशनल करते हैं, तो उस टाइम हमें कुछ अजम्पशन कंसिडर करना पड़ता है. सिमिलरली हमें यहाँ पे भी कुछ अजम्पशंस कंसिडर करने पड़ने वाले हैं. तो वो जो अजम्पशंस है कंसिडर करने वाले, वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले देख लेंगे कि कौन कौन से अजम्पशंस हमें कंसिडर करने हैं. तो सबसे पहले अजम्पशंस हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, जो भी हमारा न्यूक्लियस है, फर्स्ट वन,
जो भी हमारा न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस हमारा स्पेरिकल शेप में है। कौन से है? इट इज इन अ स्पेरिकल शेप, दैट मीन्स इट इज वन काइंड ऑफ द ड्रॉप, एक ड्रॉप है वो। जो दूसरा हम यहाँ पे अजम्पशंस लेंगे, वो अजम्पशंस हमारा ऐसा होगा कि जो फोर्स होंगे न्यूक्लियॉन्स के अंदर के, इट इज नथिंग बट द स्पिन इंडिपेंडेंट एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। देखो पहले हमने क्या किया कि जो भी हमारे न्यूक्लियस है वो कैसे है, एक ड्रॉप है। दूसरा क्या कंसीडर कर रहे हैं, जो भी इंटरैक्शंस है या जो भी फोर्स है न्यूक्लियॉन्स के अंदर का, एक तो वो स्पिन डिपेंडेंट है और दूसरा वो कैसा है, चार्ज इंडिपेंडेंट है, स्पिन इंडिपेंडेंट और चार्ज इंडिपेंडेंट। और लास्ट वन क्या है कि ये जो न्यूक्लियॉन्स है इस दोनों की जो भी रेंज होगी वो वेरी शॉर्ट रेंज होगी, दैट मीन्स दे पोजेसेस द शॉर्ट रेंज कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो इसके अंदर जब हम लोग टर्म देखेंगे, मैंने पहले ही बताया कि जो वैन वेइज सैकर्स थे उन्होंने क्या किया था कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म एक्सप्लेन किए हैं इसके अंदर। तो एक एक टर्म हम लोगों को देखना है, तो चलो देखते हैं पहले वाली टर्म। तो पहले वाली टर्म आती है हमारी वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी। फर्स्ट वन टर्म कौन सी है, ये आएगी आपकी वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी। अब ये वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? वॉल्यूम हमें पता है, हमने क्या किया है, सबसे पहले कंसिडर किया था कि एक अजम्पशंस हमने लिया था, दैट मीन्स वी आल्सो कंसिडर्स, हमने क्या किया था कि हमारा जो भी न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस मानो कैसा है, एक ड्रॉप है। क्या है? एक ड्रॉप है। तो अब ड्रॉप है मतलब उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स तो हो गए, तो हमें पता है न्यूक्लियॉन्स किससे बने होते हैं, द न्यूक्लियॉन्स इज मेड अप ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स। और वो दोनों के अंदर की जो रेंज होती है, जो बाइंडिंग फोर्स होता है दोनों के अंदर का, वो बहुत शॉर्ट रेंज होता है। और ऑब्वियसली वो शॉर्ट रेंज है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों कैसे है, बाउंडेड है इन दी न्यूक्लियॉन्स। दैट मीन्स उनके अंदर का जो भी फोर्स होगा वो फोर्स कैसा होगा, दे हैव द अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा होगा वो, एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब ये जो फोर्सेस है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब वो क्या रिड्यूस करेगा, वो रिड्यूस करेगा आपका मास ऑफ द न्यूक्लियस। क्या रिड्यूस करेगा वो, मास ऑफ द न्यूक्लियस रिड्यूस करेगा। लेकिन जब वो मास ऑफ द न्यूक्लियस रिड्यूस करेगा तब वो कब करेगा, जब वो बिलो दी इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय एन अमाउंट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है उसके एक पर्टिकुलर रेंज के अगर बिलो जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शनल ए को, तो वो क्या करेगा, उसके मास को रिड्यूस करेगा। अब सिंपल बात है, अब जो वॉल्यूम होता है, देखो जो भी वॉल्यूम होता है, अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम इट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द ए, दैट इज मास नंबर्स। जो न्यूक्लियॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है उसके ऊपर वो है कंसिडर, वो उसके ऊपर ही फैक्टर डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियसली तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी वॉल्यूम होगा न्यूक्लियस का वो सीधा से सीधा प्रोपोर्शनल होगा ए को। तो क्या बोल रहा हूं, जो भी वॉल्यूम होगा, जो भी वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बनके क्या बनेंगे, हमारे न्यूक्लियॉन्स बनेंगे। तो ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको, ए को। किसको होगा, ए को प्रोपोर्शनल होगा। और इट इज मे रिगार्डेड एज द वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो सिमिलरली ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी। और ये वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी किसको प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है इस ए को। किसको प्रोपोर्शनल है, इस ए को। तो हमें एक सीधी सी चीज पता है, अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकाल देते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे इज इक्वल टू और कोई भी एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो माना हमने यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा लिया, ए वी ले लिया। कौन सा ले लिया, ए वी ले लिया, ये वाला हमने कांस्टेंट ले लिया। और ये क्या होगी आपकी बाइंडिंग एनर्जी, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा बी वी से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा इसको मैं, बी वी से। अब ये जो बी वी है,
तो इसके अंदर का जो बी है वो बी क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका बाइंडिंग एनर्जी, और इसका जो सबस्क्रिप्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका वॉल्यूम एलिमेंट। यहाँ का जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली ये जो AV है, ये AV क्या है हमारा, ये AV आता है निकल कर यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जो कि किसके रिलेटेड कांस्टेंट है, वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी के रिलेटेड कांस्टेंट है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे AV लिख दिया। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अंदर का जो सेकंड वन है हम लोग वो देखेंगे, और सेकंड वन आता है इसके अंदर का वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी के बाद आने वाला जो है दैट इज कॉल्ड एज द सरफेस बाइंडिंग एनर्जी। दूसरा वाला कौन सा है अपना, जो है दूसरा वाला वो है सरफेस बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अभी सरफेस बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, तो हमें तो पता है जो भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो ये माना कि ये ऐसे होते हैं, ऐसे बाउंडेड होते हैं एक दूसरे को, बराबर है, ये क्या होते हैं, ऐसे एक दूसरे को बाउंडेड होते हैं। अब जो कुछ न्यूक्लियॉन्स है जो सरफेस के नियर होते हैं, देखो आपको एक 12th स्टैंडर्ड में एक एडेसिव और कोहेसिव फोर्स दैट इज सरफेस टेंशन के अंदर एक डायग्राम गई होगी लाइक दैट। ठीक है, अब ये इन जनरल कंसीडर करो कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर आने वाले जो भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो दूसरे न्यूक्लियॉन्स से बहुत कम इंटरैक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत कम इंटरैक्ट होते हैं। दैट मीन्स उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या करेगा, इस बाइंडिंग एनर्जी को ये रिड्यूस करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी को क्या करेंगे, ये रिड्यूस करेंगे। जो भी सरफेस के नियरर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं दे इंटरैक्ट विथ वेरी फ्यू न्यूक्लियॉन्स, बहुत कम न्यूक्लियॉन से इंटरैक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो अपर पोर्शन रहता है ना, ऊपर वाला पोर्शन जो रहता है ना, वो कैसा होता है, इट इज कंप्लीटली ओपन। दैट मीन्स दे हैवंट एनी नियरर एटम्स। तो उसके जो बिलो वाले होंगे, नीचे वाले जो एटम्स होंगे, उस नीचे वाले एटम के साथ वो इंटरैक्ट करेगा। मतलब क्या करेगा, बहुत कम न्यूक्लियॉन्स के साथ वो इंटरैक्ट करेगा। और ऐसे केस में क्या होता है कि जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, उस बाइंडिंग एनर्जी, मुझे वॉल्यूम ऑफ दैट बाइंडिंग एनर्जी को वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो वो कितना रिड्यूस करेगा, वो रिड्यूस करेगा उसके प्रोपोर्शनल टू दैट सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। और इसके अंदर क्या है, उसके अंदर उसकी जो रेडियस होती है वो रेडियस बहुत मायने रखती है। रेडियस क्या करती है, बहुत मायने रखती है। देखो ये वाला समझो, मान लो ये वाला न्यूक्लियस मैं आपको बता रहा हूं, तो ये जो सरफेस पे है ना, तो ये सिर्फ इधर वाले के साथ होगा। मतलब इसकी जो रेडियस होगी ना, वो रेडियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी। अब ये हो गया सिंपल, ठीक है, ये सरफेस एरिया के रिलेटेड हो गया। अब कुछ लाइट न्यूक्लियाई होते हैं और उसके अराउंड बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, बराबर है। और जब वो सरफेस के थोड़ा बहुत पास आता है तो भी उसको दिक्कत तो आएगी। माना कि ये वाला पकड़ लो, ये वाला पकड़ लो, ये वाला, क्योंकि इधर ज्यादा न्यूक्लियस नहीं होंगे, लेकिन अगर ये यहाँ पे है तो उसके आजू बाजू वाले न्यूक्लियॉन्स कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। मतलब क्या होगा, जो बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी, जो बाइंडिंग एनर्जी, अब हर इसकी एक बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। मैंने बताया कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कम है, सिमिलरली यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी। मतलब जब हम लोग मेन बाइंडिंग एनर्जी को करेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स में लिखेंगे तब हमें एक बात समझ में आएगी, जो भी हमारी करेक्टेड बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कैसी होती है, वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एरिया के अकॉर्डिंग, और उसको ही बोला जाता है सरफेस एनर्जी। अब इसको एक सिंपल तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। अब जो भी सरफेस एरिया है हमारा, देखो सरफेस एरिया अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, ये जो सरफेस एरिया हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो हम क्या कहते हैं, दैट इज नथिंग बट दी 4πr³। ये क्या होता है, 4πr³ होता है। अब ये r की वैल्यू हमें पता है, r क्या है हमारा, r इज नथिंग बट दी r0 a⁻⁴ सॉरी 1/2 r0 इंटू, एक मिनट, ये 1/3 r² होगा, ये 2/3 ये स्क्वायर होगा हमारा,
4 पाई आर स्क्वायर है हमारा ये। सिमिलरली अब ये क्या है हमारा, ये 1/3 है, ये क्या है हमारा r0 a⁻1/3। अब इसकी वैल्यू अगर हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी तो ये क्या हो गया 4 पाई r0 स्क्वायर a⁻2/3। ये क्या हो गया 4 पाई r0 स्क्वायर a⁻2/3। और मैंने क्या बताया आपको कि जो भी बाइंडिंग एनर्जी होगी वो बाइंडिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल होगी आपके सरफेस एरिया को। तो क्या होगा, अब ये बाइंडिंग एनर्जी जो है तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 4 पाई r0 स्क्वायर a⁻2/3 बराबर है। तो फिर ये जो टर्म है ना, ये टर्म हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं B इज इक्वल टू A इंटू कौन सी एनर्जी देख रहे हैं हम लोग, सरफेस एनर्जी, तो AS इंटू a⁻2/3। और यहाँ पे एक बात समझनी चाहिए हमें कि ये क्या कर रहा है, ये आपका जो फोर्स है वो बहुत छोटा है। सिमिलरली ये क्या कर रहा है, आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है ना वो बाइंडिंग एनर्जी रिड्यूस कर रहा है। दैट मीन्स ये स्टेबल है क्या, नहीं, ये अनस्टेबल है। अगर किसी भी चीज में अगर बाइंडिंग एनर्जी रिड्यूस होती है तो हमें वहां पे माइनस साइन देना इंपॉर्टेंट होता है। क्या देना इंपॉर्टेंट होता है, माइनस साइन देना इंपॉर्टेंट होता है। और ये हो गया हमारा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये जो B है ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, ये S क्या है, रिलेटेड टू दैट सरफेस बाइंडिंग एनर्जी, माइनस AS ये क्या है, ये है हम लोगों ने लिया हुआ यहाँ पे कांस्टेंट। हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ क्या है, ये है सिंपल कांस्टेंट है। और ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट हम लोगों को निगेटिव साइन के साथ इसलिए लिया है यहाँ पे क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। देखिए इस सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला के अंदर जब से आपकी एनर्जी को वो रिड्यूस करने की कोशिश करेगा तब उस एनर्जी के रिलेटेड क्या आएगा, माइनस साइन आ गया। ये हो गया आपका सरफेस बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन नंबर 2। अब अगला वाला देखते हैं, अगला वाला बहुत इजी है। अगला वाला चल के आता है हमारा, दैट इज द कूलम्ब बाइंडिंग एनर्जी। कौन सा वाला, कूलम्ब बाइंडिंग एनर्जी, और उसको हम बोलेंगे कूलम्ब एनर्जी। अब कूलम्ब एनर्जी तो हम लोगों को सबको पता है क्योंकि जब हम लोगों ने न्यूक्लियर की स्टडी की तब हम लोगों को इस कूलम्ब एनर्जी की जरूरत आ पड़ी। तो कूलम्ब एनर्जी क्या होती है, तो कूलम्ब एनर्जी को जो भी कुछ हम लोग फोर्स से जब हम लोग उसको कंपेयर करते हैं तब हमें पता चलता है कि कूलम्ब एनर्जी का जो भी इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। अब कूलम्ब एनर्जी जब भी आती है तब हम क्या कहते हैं, कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स। कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम बार सुना होगा या सुना ही नहीं होगा, लेकिन कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स हम लोगों ने बहुत ज्यादा देखा है। तो जब हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के रिलेटेड कूलम्ब्स की स्टडी करते हैं तो हमें एक बात पता चलती है कि ये जो कूलम्ब एनर्जी है इट इज रिलेटेड टू दैट लॉन्ग रेंज फोर्स इन द न्यूक्लियर, बराबर है। तो लॉन्ग रेंज फोर्स है, दैट मीन्स उसका कूलम्ब फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, बराबर है। लॉन्ग अगर ले लिया हमने, क्यों लॉन्ग ले लिया, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स आएंगे और प्रोटॉन्स आएंगे, दैट मीन्स वहां पे कौन सा फोर्स आएगा, वहां पे ऑब्वियसली रिपल्शन फोर्स आएगा। अब जब कूलम्ब रिपल्शन फोर्स की एक बात आ ही गई तो हमें एक बात पता है कि ये जो रिपल्शन टर्म है इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके बराबर आती है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आती है। और यहां पे हम किसका सोच रहे हैं, सिर्फ प्रोटॉन्स का सोच रहे हैं। दैट मीन्स द कूलम्ब रिपल्शन टर्म इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Z protons which is packed together in a spherical symmetry assembly of the which have the radius, उसकी जो भी कुछ रेडियस होगी, अब उसको मैंने आपको बताया था, ये वाला कूलम्ब फोर्स, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ये इसको भी ऐसा कंसीडर करके आप देख सकते हैं। ये जो लॉन्गर्स न्यूक्लियॉन्स है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे प्रोटॉन्स के अंदर के जो भी फोर्स आएंगे वो तो कैसे होंगे, रिपल्शन फोर्स होंगे, दैट इज रिपल्सिव फोर्स होगा, बराबर है। लेकिन ये रिपल्सिव फोर्स अकॉर्डिंग टू दैट उसके क्या आएगा, रेडियस आएगा। तो हमें आर की तो वैल्यू पता है, क्या है, आर इज इक्वल टू R0 इंटू a⁻1/3। ये बात तो हमें सिंपली यहाँ पे पता है।
बराबर है। तो अब जब बात आई गई है R इज इक्वल टू R0 की, तो मतलब क्या होगा कि जो भी आपका चार्ज होगा, जो भी चार्ज होगा उस कंप्लीटली स्पेयर के ऊपर का, वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कैसा होगा वो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दैट मीन्स क्या है, अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हम लोग उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो उसकी डेंसिटी हो गई रो सी से हम उसको बताएंगे, तो उसकी डेंसिटी क्या आएगी अकॉर्डिंग टू दैट रिपल्सिव फोर्स। वो तो सिंपल है, ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, R0 वाली टीम लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R0 क्यूब इंटू A। R0 तो ये वाली टर्म नहीं आएंगी, सीधा 4 पाई R0 4/3। एक मिनट, वॉल्यूम एलिमेंट है ना इसके रिलेटेड, ठीक है चलो, 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू A। अब ये सिंपल वाली टर्म आ गई यहाँ पे, बराबर है। अब एक चीज यहां पे आपको देखना पड़ेगा, आप क्या बोलोगे कि सर आप तो बता रहे थे कि 4/3 पाई R क्यूब आता है, बराबर है, ये वॉल्यूम टर्म आएगी, तो ये क्या होगा, ये होगा सिंपल आपका 4/3 पाई R क्यूब। लेकिन R क्या है, R इज नथिंग बट दी R0 इंटू A रेज टू 1/3। तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएंगे। तो ये सिंपल मैंने ऐसा लिख दिया इसको, रो सी इज इक्वल टू ZE अपॉन 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू A। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी देखो हम लोग अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लिया, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी है, इट इज सिंपली द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी क्या करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगी। दैट मीन्स इन असेंबलिंग इन सच अ स्पेयर, असेंबलिंग इन सच अ स्पेयर। अब क्या करेंगे हम लोग, चार्ज देखेंगे इसके ऊपर का, जो dq है, क्या है, dq चार्ज है ऑन द शेल्स ऑफ द थिकनेस दैट इज dr ऑफ द सेम। देखो कोई भी एक पकड़ लो, ऐसा ये पकड़ लो, ये वाला स्पेयर पकड़ लो, ठीक है। इस पेयर्स के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, आर क्या थी हमारी, रेडियस थी, रो सी क्या निकाली हम लोगों ने, इसकी डेंसिटी निकाली। अब इसकी जो थिकनेस है ना, वो थिकनेस हम लोग देखेंगे यहाँ पे dr, और अकॉर्डिंग टू दैट dq हम लोग क्या करेंगे, उसका चार्ज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उसका चार्ज, और ये वाला r इसको स्मॉल r दे देंगे यहाँ पे। तो अब इसका चार्ज कैसा निकालेंगे, चार्ज इज इक्वल टू क्या है, इट इज नथिंग बट दी रो सी इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू dr। ये तो सिंपल फार्मूला है, इसको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब रोसी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, रोसी की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे पुट करोगे, अब मैं डायरेक्ट इक्वेशंस आपको सॉल्व करके दे दूंगा। अगर आप रोसी की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे तो क्या होगी, ये 3 को ऊपर ले लो, 3ZE अपॉन 4 पाई R0 क्यूब इंटू A। तो 4 पाई गेट विल बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, सिंपल 3ZE डिवाइडेड बाय R0 क्यूब इंटू A। ये तो सिंपल रहेगा ही, बराबर है, इंटू क्या हो गया, R स्क्वायर इंटू dr। ये वाला इक्वेशन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हमें मिली, बराबर है। हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी सिंपली द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब जो भी वर्क होगा, बराबर है, वर्क किसके अकॉर्डिंग होगा, आपके चार्ज के अकॉर्डिंग होगा। ब्रिंगिंग दिस द चार्ज dq फ्रॉम इंफिनिटी टू r। कहां तक है पता नहीं, लेकिन रेडियस तक उसके हमें पता है, कहां तक आएगा, उसके r तक आएगा। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो वो सिंपली आ जाएगा। यहां पे मैं सॉल्व करूंगा इसको, अगर आप लोग इसको इजीली सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, ये आ गया आपका 3ZE डिवाइडेड बाय R0 क्यूब इंटू A इंटू R स्क्वायर dr इंटू 4 पाई। देखो थोड़ा सा समझ के लिखना पड़ेगा, 4/3 पाई R। ये स्मॉल r वाला आएगा क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम लोग, स्क्वायर के रेटिंग 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो सी डिवाइडेड बाय, ये वाला थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, हमने dq की वैल्यू पुट कर दी, चार्ज की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी, इनटू डिवाइडेड बाय
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। अगर आप इसको प्रॉपर से देखो, यहाँ पे अपने हम लोगों को रो सी की भी वैल्यू लिखने की, डेंसिटी की वैल्यू लिखेंगे। जब आप इसको डेंसिटी की वैल्यू लिखोगे तब अगर इसको आप फाइनली सॉल्व करोगे तो वो इक्वेशन आ जाएगा 3z स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 दैट इज r0 रेज टू 6 a स्क्वायर इंटू r रेज टू 4 इंटू dr बराबर है। अब ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे देखेंगे, इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इसको इंटीग्रेट करते वक्त क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेशन लेंगे 0 टू r, जो कि हमारा r क्या है, r0 इंटू ए रेस टू 1/3 है। इसको अगर हम लोग ये टर्म से इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें सिंपल मिलेगा यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट दी कूलम रिपल्शन। दैट मीन्स वी हैव टू गेटिंग हियर लॉस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कूलम एनर्जी। देखो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी फिर से क्या हो रही है, लॉस हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, सिंपल माइनस साइन आएगा। चलो आप लोग अगर इसको जब भी आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद ये आएगा आपका, माइनस साइन ले लो, मैंने बता दिया, वो आएगा आपका 3/5 z स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिंपली 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r0 a रेस टू 1/3। ये आ गया आपका। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, जो टर्म हमारे काम की नहीं है वो निकाल दो इसमें से। देखो कौन सी नहीं है अभी, देखो एक तो ये वाला ई स्क्वायर नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 r0, और ये वाला, ये सब के सब टर्म कैसे हैं, कांस्टेंट टर्म है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, दैट इज कूलम बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए सी इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए रेस टू 1/3, ए रेस टू 1/3। अब बहुत टर्म में क्या हो गया, इसको ऊपर ले गया लॉ ऑफ इंडाइसेस और उसको हम लोग बोलते हैं ए रेस टू -1/3। अब इसके अंदर ये जो भी बता रहा है ना हमें ये भी बता रहा है बाइंडिंग एनर्जी, और ये सी बता रहा है बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ दैट कूलम एनर्जी, और ये जो ए सी क्या है, ए सी जो है हमारा वो है कूलम कांस्टेंट। सो गाइस ये था हमारा यहाँ तक का सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूले के 3 पॉइंट यहाँ पे हो गए, और अभी हमें 2-3 पॉइंट और देखने हैं। वो 3 पॉइंट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाइस थैंक यू।